Everyone. Welcome to CA Club India. I am Muskan Mudgil, a content creator at CA Club India. Today we have with us CACS Ujjwal Jindal, who is the co-founder at UJ Legal LLP and is experienced in the field of direct and indirect tax laws, corporate, secretarial and allied laws, capital markets, etc. Today, Ujjwal is going to decode one of the most important topics, that is CSR under Section 135 of the Companies Act 2013. He will also be discussing the latest amended rules related to CSR. Before we start with the session, I would like to inform everyone that this is a speaker session, but in case you have any questions, you can put them in the chat box and Ujjwal will try to answer them as many as he can at the end of the webinar. Thank you. The mic is all yours, Ujjwal. Thank you so much, Muskan. And thank you so much, CA Club India, for having me once again for a webinar on decoding the CSR provisions. Actually, I prepared this webinar for a time span of around 1.5 hours, but I guess we have 1 hour. I'll try to incorporate all the provisions of the CSR that are within the Section 135 of the Companies Act. And moreover, I would like to also cover the new amended rules that have been notified from the 22nd of January 2021. So that are basically very important, and the basic, the basic for which we have all have gathered today is for those amendments. So I would start. Corporate social responsibility begins with a strong competitive company. Only a healthy enterprise can improve and enrich lives of people. And just a second, I guess there is some glitch. Just give me a second. Yeah, it's okay now. So corporate social responsibility is all what begins with a strong competitive company. Only a healthy enterprise can improve and enrich lives of people and their communities. So that was said by Jack Welch, and he really meant that CSR is something, a type of a social obligation that each corporate is most likely to begin with. Because every time we are evolving in a world where the enterprise are growing at a tremendous pace, so they also hold a social responsibility towards the society. So the concept of CSR is also known of its philanthropic nature. CSR is basically a self-regulating business model that helps a company to be socially accountable to itself, to its stakeholders, and to the public. And by practicing CSR, also called as corporate citizenship, companies can be conscious of the kind of impact they are having on all aspects of the society, including economic, social, and environmental, which is why the government has considered all these aspects while formulating the CSR rules in India. So corporate social responsibility is a management concept whereby the companies integrate social and environmental concern in their business operations and interactions with the stakeholders and the public. CSR is a contribution and not just a mere spending. So basically, the concept of CSR is for the good of the nation. So I would say that whenever we say a thing to be an expense, so that is not rational for which it is goes for the national building. So rather than using the word spending or expense, I would tend to call CSR as a contribution, because it is for the nation good, it is for the nation building. CSR was introduced back in the year 2010 when the Ministry of Corporate Affairs had issued corporate social responsibility voluntary guidelines, which made CSR voluntary for the companies for the first time. And it was introduced as a statutory regulation by the companies by way of Companies Act under Section 135. So earlier what CSR came was like a voluntary implication on various of the companies that if they want to follow or they want to go on the path of CSR, so they can go. And by the start of the Companies Act 2013, so when it eventually started in 1st of April 2014, so these provisions became mandatory for all the companies, depending upon what is the applicability condition, depending upon, we'll be discussing all of them in our today's webinar. So thereafter came these companies' corporate social responsibility policy rules that were notified on 27th of February 2014 to lay down specification and procedure to be followed by the company while discharging their CSR obligations. So the CSR Amendment Act of 2019 and 2020 resulted in some major changes in the CSR provisions under the Companies Act of 2013. The ministry had released the draft Companies Corporate Social Responsibility Policy Amendment Rules in the March 2020, that are the draft rule inviting for the public comments, and also
on 22nd of January, as I mentioned, the MCA finally issued the company's corporate social responsibility policy amendment rules that are called the new rules, giving effect to the changes introduced in CSR by Companies Amendment Act of 2019 and 2020. So what was made in the amendments of 2019 and 2020, they were given effect on 22nd of January 2021. And they brought in the new rules that we are talking about today. So our session, our topic of our discussion would go on basis of a few limbs. So these limbs would start with the applicability and what would be the conditions precedent, that what companies, to what extent these CSR policies or functionalities or these rules and provisions apply. Then we would also understand about what is the CSR committee and what is all about the CSR contribution. What is the meaning of ongoing project, like what are the ongoing projects and how these new rules have brought a new definition to ongoing project, because earlier they never existed in the laws or the rules that existed. Then what are the fines and penalties? Is CSR now a civil wrong and not a criminal wrong? So we'll find a question and answer to it. What is the relief that has been given by the new Amendment Act? We'll also study about the same. What are the additional amendments that have been brought by the new rules? And at the end, we'll be discussing about the tax impact of CSR. This is the my favorite topic. So we'll also be covering the tax impact of CSR, like how whether CSR is a business expenditure or not, or whether ATG deduction is available for CSR or not. So these are a hell lot of questions that people ask in various of the webinars, discussions. So we'll be addressing all of them one by one. We have a shortest time span because I want to cover everything that I've prepared for within this purview of 1 hour. So what I'll do is I'll go a little fast with the applicability and the general concept that always existed even before this act was, the new rules were passed. So we'll be going a little faster with that. And whenever there is an amendment or there is a new rule or there is a new provision that is highlighted, I'll take much time along with the examples also. So going with the applicability of the CSR provisions, it is on all companies alike, be it a listed company, be it a public or private company, be it a Section 8 company, be it a holding company, subsidiary company, foreign company having its branch office or project office on India. So basically it flows on to all companies, the only exception being that it should not be if it is a IFSC company, it is a private company or a public company. So for them, a condition or rule or relaxation of 5 years from the date of commencement of specified IFSC public company and private company has been provided. So this was provided back by the notification of 4th of January 2017. Then we'll move to the second limb, that is the condition precedent. So on what premise this CSR provisions applies to all the mentioned companies that I mentioned. So if a company is having a net worth of rupees 500 crore or more, or it is having a turnover of 1000 crore or more, or it is having a net profit that is calculated in accordance with the provisions of section 198 of rupees 500 crore or more during the immediately preceding financial year shall constitute a CSR committee of the board. So अगर कोई भी कंपनी इन तीनों में से कोई भी कंडीशन को मीट आउट करती है, सो इट इज और एनी कोई भी एक कंडीशन अगर कोई भी कंपनी मीट आउट करती है तो उसे सीएसआर प्रोविजंस को फॉलो करके एक सीएसआर कमेटी को बनाना पड़ेगा. बट जो हमारा नए रूल्स आए हैं उसमें सीएसआर कमेटी के ऊपर भी कुछ रिलीफ ऑफर हुए हैं. हम उन रिलीफ्स के ऊपर भी चलेंगे जब अपने लिम्प डिस्कशन में वहां पे पहुंचेंगे. So also like if there is a condition that your company is not falling within the purview of the conditions that I have enlisted, so they can also move on. एक voluntary वाला तो हमेशा से concept रहता ही है कि अगर आप चाहें तो इन सारे provisions को voluntarily follow कर सकते हैं. तो सारे प्रोविजंस को अगर आपकी कोई नेटवर्थ भी नहीं है, टर्नओवर भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं सीएसआर करना फॉर गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस या फिर अपनी कंपनी को एक अच्छा रूप देने के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो इन एंड यू कैन आल्सो परफॉर्म द सीएसआर एक्टिविटीज फॉर योर कंपनी. थर्ड लिम की तरफ आते हैं जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ द सीएसआर कमेटी. तो ये सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की तरफ है. इस पूरे प्रोविजन के अंदर वी हैव टोटल ऑफ 8 सबसेक्शंस. सो वी हैव जस्ट एनलिस्टेड द स्टार्टिंग लाइक सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 तकरीबन, एंड इसके बाद हम लोग सबसेक्शन 3 एंड 4 भी बेसिकली फ्रेमिंग सीएसआर पॉलिसीज के ऊपर है और कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में. तो सीएसआर कमेटी को जल्दी से खत्म कर लेते हैं. इसमें ये कहते हैं दैट एवरी सीएसआर कमेटी ऑफ द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 or more डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट
one should be an independent director. एंड उन कंपनीज के केसेस में जहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कंडीशन अप्लाई ही नहीं करती है, यानी 149(4) जहां पे अप्लाई नहीं होता, तो उन केसेस में सिर्फ 2 डायरेक्टर से हम लोग सीएसआर कमेटी को बना सकते हैं. जो भी सीएसआर कमेटी बनेगी, इसका डिस्क्लोजर जो जाएगा वो आपकी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जाएगा, अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 134. जो बोर्ड रिपोर्ट हम लोग बनाते हैं एनुअल कंप्लायंस के टाइम पे, उस दैट पर्टिकुलर बोर्ड रिपोर्ट वुड कंटेन द डिस्क्लोजर ऑफ दिस composition of the CSR committee. Then we go to the framing of the CSR policy, that how CSR policy is framed. So what is happening is, when we have constituted a CSR committee, so the committee shall pass on its recommendations to the board, and the board shall finally evolve on a policy that would be called the CSR policy of the company. What all the areas in which this CSR policy can be created is the area that have been specifically enlisted in Schedule 7 of the Companies Act. तो वहां पे कौन कौन सी एक्टिविटीज उन लोगों ने स्टेट की हैं? दे आर मेजरली पर्टेनिंग टू दी हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, नेशनल हेरिटेज, एपिडेमिक, स्पोर्ट्स, पीएम फंड्स जैसे हमारा पीएम केयर्स है, या फिर पीएम एनआरएफ नेशनल रिलीफ फंड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेस में, डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर हम देखें अभी कोविड के टाइम पे भी हम लोगों के लिए जैसे पीएम केयर्स फंड भी बना था, बाकी सारे फंड्स भी बने थे, कुछ स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज की प्रिजर्वेशन के लिए. सो बेसिकली सारी चीजें जिसके अंदर कहीं नेशनल डेवलपमेंट या सोशल अपलिफ्टमेंट आता है, इफ द कंपनी इज कंट्रीब्यूटिंग टू एनी ऑफ सच टास्क और फंड, so basically that is comprised in the CSR activity for the company. And the CSR once this policy is framed, so what will happen is that iske bhi disclosures obviously board report ke andar jayenge, and company ko apni website pe bhi ise CSR policy ko dalna padega, and इस CSR policy को time to time oversee भी करना पड़ेगा, that whether things are going on as per what the company or what the board has decided, and उस कंपनी की पॉलिसी को, CSR की पॉलिसी को बोर्ड जो है वो टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करते रहेंगे. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की तरफ देखें तो ऑब्वियसली द बोर्ड विल मतलब बेसिकली बोर्ड सब कुछ बताएगा कि कमेटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुई, कमेटी के अंदर क्या क्या चीजें रेकमेंड की गई, कौन कौन सी चीजें फाइनली बोर्ड ने अडॉप्ट करी, एंड हाउ दिस CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन, या फिर उसका जो लॉन्ग टर्म प्लान है बेसिकली कंपनी का, वो किस तरीके से जा रहा है. तो ये बेसिकली हमारे 2 लिम्स थे जहां पे हम लोगों ने देखा कि किस किस पे एप्लीकेबिलिटी है, कौन कौन सी कंडीशंस है जो प्रेसिडेंट थी. एंड थर्ड लिम में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो CSR कमेटी है वो कैसे बनती है, एंड हाउ दिस CSR कमेटी इज फाइनली disclosed in the board report and everything. So now moving to the next limb, amount to be contributed on CSR, that is CSR spendings जिसे आप लोग कहते हैं सेक्शन 135(5) की, या फिर मैं इन्हें कहूंगा CSR contributions. So we all are aware that what are all the average profits of the past 3 years, उसके 2% आप लोगों को इसमें CSR की स्पेंडिंग करनी होती है. The board of every company shall ensure that the company spends in every financial year at least 2% of the average net profits of the company made during the 3 immediately preceding financial year, or where the company has not completed the period of 3 financial year since its incorporation during such immediately preceding financial year in pursuance of its corporate social responsibility. So जहां पे कंपनी ने 3 साल का पीरियड कंप्लीट नहीं किया है, और मान लीजिए उसके ऊपर CSR के रूल्स अप्लाई कर जाते हैं, या वो उसकी नेटवर्थ उतनी हो जाती है, उसकी टर्नओवर उतनी हो जाती है, या फिर उसके प्रॉफिट्स उतने हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर जितने भी पीरियड से उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा, उसके प्रॉफिट्स का हम लोग एवरेज लेके अपना 2% जो है वो कंप्यूट कर लेंगे. यानी कि 3 इयर्स का जो एक मैंडेटरी टाइम स्पैन था, या 3 इयर्स का जो एवरेज नेट प्रॉफिट हम लोगों ने देखना होता था, उसे हम नहीं देखेंगे 2% की कंप्यूटेशन में. दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन अमेंडेड इफेक्टेड फ्रॉम 22nd of January 2021. So basically this is what has been brought by the Companies Amendment Act 2019 and given effect in the January 22nd. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इस CSR एक्सपेंडिचर को कंपनी कहा जाता है कि उन्हीं एरियाज में करेगी जहां पे उसकी लोकल विसिनिटी है. लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस द कंपनी हैज टू गिव to the local areas around it where it operates for spending the amount earmarked for the corporate social responsibility activities. तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैंडेटरी है कि कंपनी को सिर्फ उन्हीं एरियाज में ये एक्सपेंसेस करने हैं? तो जो गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से FAQs का एक सेक्शन भी आया जहां कि उन्होंने डिफाइन किया है कि नहीं, दिस इज ओनली अ रिकमेंडेटरी रिक्वायरमेंट, कि प्रेफरेंस आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लोकल एरिया की तरफ दीजिए, फिर आप अगर चाहें तो दूसरे एवेन्यूज या दूसरे एरियाज की तरफ भी अपने CSR एक्सपेंडिचर्स को मोड़ सकते हैं. So this is not a mandatory requirement, however a suggestive or recommendatory requirement.
अगर मान लीजिए क्या होता है उन केसेस के अंदर कि जो ये बोर्ड है ये अपना जो ये 2% का CSR एक्सपेंडिचर है वो नहीं करता है, तो उन केसेस के अंदर अब ये स्पेसिफिकली रूल्स आ गए हैं कि उस पर्टिकुलर अमाउंट का क्या किया जाएगा। अगर हम पहले के मुकाबले इस प्रोविजंस की तरफ देखें तो दीज प्रोविजंस हैव बीन मेड मोर स्ट्रिंजेंट, एंड स्ट्रिंजेंट करने का कारण यही है टू इंश्योर द रेगुलेटरी कंप्लायंस। So government ने कहा है that if any company fails to spend such amount, the board shall in its report specify the reasons for not spending the amount, and unless the amount unspent relates to any ongoing project referred to in subsection 6, transfer such unspent amount to a fund specified in schedule 7. सो बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या आई है कि अगर कोई भी अमाउंट ऐसा रहता है जो कि रह गया है अनस्पेंट, यानी कंपनी को रिक्वायर्ड था कि वो अपनी CSR स्पेंडिंग्स करें बट उन्होंने ये स्पेंडिंग नहीं की है, तो उस केस के अंदर जो ये अनस्पेंट अमाउंट है ये कंपनी को मैंडेटरली ट्रांसफर करना पड़ेगा एक फंड में जो कि स्पेसिफाइड होगा शेड्यूल 7 में। और शेड्यूल 7 में कौन कौन से फंड्स हैं, वो है PM केयर्स, अगेन आपका जैसे क्लीन गंगा फंड हो गया, या स्वच्छ भारत कोष हो गया, या फिर नेशनल रिलीफ, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड हो गए। तो ऐसे बहुत सारे सेंट्रल फंड्स हैं बेसिकली जो उसके अंदर लिस्टेड हैं। तो अगर आप इस प्रोविजन को रिलेट करें, जैसा कि हमारा कुछ अगर मैं कहूँ तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के लिए था, that if certain amounts are not withdrawn or the dividends are not paid or deposits are not matured or claimed within the desired time, तो 7 years के बाद everything has to go into this particular amount, and this amount shall be invested by the government in investor education and protection. So what is now happening is ये पैसा आपने सोशल डेवलपमेंट या सोशल अपलिफ्टमेंट या नेशनल डेवलपमेंट के लिए खर्च करना था, बट आपने ये पैसा खर्च नहीं करा एक ड्यू टाइम के अंदर जो कि गवर्नमेंट ने आपको दिया था। सो व्हाट द गवर्नमेंट विल डू इज नाउ द गवर्नमेंट विल टेक द ओनस ऑन इटसेल्फ, और ये सारे फंड्स आप लोगों से लेके दे विल स्पेंड इट अकॉर्डिंग टू द लाइक द स्पेसिफिकेशन ऑफ द फंड इन विच द स्पेसिफिकेशन हैज बीन डिफाइंड। जैसे PM केयर्स है तो उसका जो भी उसका स्पेसिफिक नेचर है कि वो हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करेगा या जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर्टिकुलर फंड के, वैसे ही वो उसको नेशनल डेवलपमेंट के काम में उस चीज को खर्च करेगा। अब इसका एक टाइम ड्यूरेशन उन्होंने दिया कि इफ यू आर नॉट डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपको ये CSR एक्सपेंडिचर करना था, यानी अगर आपके लिए मान लीजिए एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 2021 का, उसमें आपको CSR एक्सपेंडिचर करना था 2% का, लेकिन यू वर नॉट केपेबल ऑफ यू डिडंट द कंपनी डिडंट डू इट। सो व्हाट विल हैपन इज दैट वंस a period of 6 months after 31st of March 2021 elapses, so mandatorily this particular amount whatever be the computation as per 2%, ये आपका पूरा चला जाएगा शेड्यूल 7 के किसी ना किसी फंड के अंदर, आपको ही इसे ट्रांसफर करना होगा। एंड अगर आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर भी फाइन्स एंड पेनल्टीज बहुत सारे लगा दिए हैं, उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे, जो कि पहले नहीं थे या पहले भी थे बट बहुत कम थे, अब उसको थोड़ा सा अग्रेसिव कर दिया है गवर्नमेंट ने। अगर आप पूरा परव्यू देखेंगे सेक्शन का, सो एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड नाउ, देयर इज लाइक एम्बिग्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, सारे प्रोविजंस एकदम क्लियर हो गए हैं, एंड गवर्नमेंट हैज मेड इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड फॉलो दिस रूल इन फुल स्पिरिट। बेसिकली गवर्नमेंट ने इसलिए इन सारे रूल्स को थोड़ा सा अडेप्टिव बनाने के लिए ही थोड़ा सा हर चीज को और ज्यादा अच्छे से बारीकी से डिफाइन किया है, एंड सेकेंडली जो फाइन्स एंड पेनल्टीज थी उन्हें भी थोड़ा थोड़ा जो है वो इंक्रीज कर दिया है। Now we shall move to a new discussion topic, that is कि for example मान लीजिए कि कंपनी ने कुछ एक्सेस पैसा खर्च कर दिया है, बेसिकली उन्हें जो कंपनी थी उसने 2% ऑफ CSR स्पेंडिंग्स करनी थी, बट से सपोज द कंपनी मेड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 3% और 4% या फिर जितना भी एक्सेसिव देन व्हाट वाज मैंडेटरी रिक्वायर्ड। सो उस केसेस के अंदर क्या होगा, उसका सेट ऑफ पॉसिबल होगा या फिर मतलब बेसिकली उस अमाउंट का क्या होगा, वो लैप्स कर जाएगा या फिर उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। सो इसके ऊपर कोई भी प्रोविजंस पहले डिफाइंड नहीं थे। सो बाय द अमेंडमेंट इन द न्यू रूल्स गिवन इफेक्ट फ्रॉम 22nd of January 2021, if a company spends an amount in excess of the requirements provided under subsection, such company may set off such excess amount against the requirement to spend for 3 succeeding financial year with the permission of the board in such manner as may be prescribed. So basically कंपनी क्या कर पाएगी कि अगले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर उस CSR अमाउंट को, जो एक्सेसिव अमाउंट था जो कि मैंडेटरी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा उन लोगों ने कर दिया है, उसे वो सेट ऑफ कर पाएगी। कब तक? अगले 3 साल की CSR स्पेंडिंग्स तक।
अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस अगेन निकल के आएंगे कि मान लीजिए अगले साल कंपनी के ऊपर सीएसआर की रिक्वायरमेंट लगे ही ना, बिकॉज वो जो 3 कंडीशंस हैं उनमें से कोई कंडीशन पहले मीट कर रही थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, बट अब वो नहीं मीट कर रही है, तो फिर उस ईयर का क्या होगा। सेकेंडली बहुत सारे क्वेश्चंस ये निकल के आए कि ये अमेंडमेंट जो है इसको इफेक्ट दिया गया 22 जनवरी 2021 से। सो क्या हमारे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के जो अनस्पेंड या एक्सेस स्पेंडिंग ऑन सीएसआर है, क्या उसे भी हम लोग करंट ईयर के अंदर क्लेम कर पाएंगे या सेट ऑफ कर पाएंगे कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने अपने एफएक्यूज के अंदर बहुत ही क्लियर कर दिया है दैट दिस पोजीशन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 22 जनवरी 2021 एंड हैज अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, इस फाइनेंशियल ईयर पे अप्लाई करती है, यानी 2020-2021 से ये प्रोविजंस इफेक्ट लेंगी। यानी अगर आप 2020-2021 में एक्सेस सीएसआर एक्सपेंडिचर करते हैं तो इस एक्सपेंडिचर को आप अगले 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक सेट ऑफ कर पाएंगे, और अगर आप अगले 3 फाइनेंशियल ईयर तक इसे सेट ऑफ नहीं कर पाते तो ये हो जाएगा लैप्स। गवर्नमेंट ने अपने एफएक्यूज के अंदर इसे बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर दिया है, और ये भी कह दिया है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर आपका कोई कैरी फॉरवर्ड या एक्सेसिव अमाउंट बच रहा है तो वो किसी भी तरीके से सेट ऑफ नहीं होगा, यानी वो सारा का सारा एक्सपेंस या फिर कंट्रीब्यूशन जो भी आपने करी वो सब हो जाएगी लैप्स। No carry forward shall be allowed for the excess amount spent, if any, in financial years prior to 2020-2021. अब इसे थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि से सपोज इन फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 देयर इज अ कंपनी एंड दैट हैज स्पेंट 2 करोड़ ऑफ सीएसआर इन एक्सेस। मतलब मान लीजिए उनकी जो टोटल रिक्वायरमेंट सीएसआर एक्सपेंडिचर की थी वो थी 1 करोड़, एंड कंपनी ने से सपोज एक्सपेंड कर दी है 3 करोड़, तो 2 करोड़ एक्सेस में कर दिया जहां की उसको मैंडेटरीली रिक्वायर्ड था। सो इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 इट सेट्स ऑफ ₹50 लाख फॉर सच एक्सेस। ऑब्वियसली अब 3 साल का टाइम मिल गया है, तो कंपनी ने क्या किया कि अगले साल का जो सीएसआर कंट्रीब्यूशन बना वो 50 लाख बना, तो कंपनी ने इस 2 करोड़ के अंदर 50 लाख को सेट ऑफ कर लिया। नाउ द कंपनी हैज एन एक्सेस ऑफ 1.5 करोड़ जो कि वो अगले 2 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी लेते हैं कि सेकेंड ईयर के अंदर यानी 22-23 के अंदर जो कंपनी है उसके ऊपर सीएसआर के जो लॉज हैं वो अप्लाई नहीं करते, बिकॉज उन्होंने जो कंडीशंस अपने प्रेसिडेंट पढ़ी वो उस कंपनी पे अप्लाई नहीं करती। सो इन सच केस व्हाट विल हैपन, द कंपनी विल हैव टू रिटेन दैट एक्सेस सीएसआर एक्सपेंडिचर ऑफ 1.5 करोड़ अप टू द फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी 22-23 के लिए भी वो साल कंसिडर होगा। 23-24 तक आप उस सीएसआर एक्सपेंडिचर का एक्सेस सेट ऑफ कर सकते हो, एंड देयर आफ्टर द सेम शैल लैप्स। सो बेसिकली अगर आपके ऊपर सीएसआर के कंडीशंस या प्रोविजंस बीच में अप्लाई छूट भी जाते हैं, इवन देन वो आपकी 3 साल की जो गिनती है दैट वुड गो ऑन रेगुलर। तो ये सारा बेसिकली एक नया अमेंडेड रूल है जो कि लेके आए हैं एक्सेस सेट ऑफ के केस में, एंड ये 22 जनवरी 2021 से अप्लाई होता है। नाउ विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस पर्टिकुलर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ये बहुत ज्यादा लाइक पॉपुलर रहा है ये वाला टॉपिक की, एंड अगर हमने अभी ऊपर वाले डिस्कशन के अंदर भी जैसे मैंने देखा तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो अनस्पेंट अमाउंट था वो बेसिकली हमें 6 महीने के बाद फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 महीने के बाद ट्रांसफर करना था एक शेड्यूल 7 के फंड में जो कि थे पीएम केयर। लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी अनस्पेंट अमाउंट जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ना हो। सो बेसिकली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस गवर्नमेंट लेके आई है कि उन्होंने कहा है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के केस में अगर आप अनस्पेंट अमाउंट रखेंगे तो उन्हें आपको उस फंड में ट्रांसफर नहीं करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है ये हम समझते हैं। उससे पहले भी सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होता ही क्या है। सो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बेसिकली इज अ मल्टी लेयर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय अ कंपनी in fulfillment of its CSR obligations having timelines of not exceeding 3 years, excluding the financial year in which it was commenced, and shall include such project that was initially not approved as a multi-year project but whose duration has been extended beyond 1 year by the board based on reasonable justification. So यानी ये एक एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट है जो कि मैक्सिमम हो सकता है एक 3 साल के पीरियड का, जो कि सीएसआर ऑब्लिगेशन या फिर सीएसआर के एरिया में ही ऑपरेट करेगा जो एक्टिविटीज शेड्यूल 7 के अंदर लिखी हुई हैं। बट इसका जो टाइम स्केल रहेगा, जिसका टोटल टाइम स्पैन रहेगा वो 3 साल तक स्प्रेड रह सकता है एंड 1 साल से ऊपर रहेगा। उसे गवर्नमेंट ने बोला है कि इसे हम मान लेंगे एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट सीएसआर के परव्यू या पर्सपेक्टिव से।
अब इसके अंदर अमेंडमेंट क्या आई या फिर क्या इंसर्शन थी, ये बेसिकली 135 सबसेक्शन 6 ने कहा कि इफ देयर इज एनी अमाउंट दैट रिमेन्स अनस्पेंट अंडर सबसेक्शन 5। अब अगर मैं सबसेक्शन 5 की बात करूं तो वो ऊपर वाला सबसेक्शन था जिसके अंदर हम लोग शेड्यूल 7 के किसी फंड में 6 महीने के बाद उस पैसे को ट्रांसफर कर रहे थे। But that particular amount is pursuant to ongoing project fulfilling such conditions as may be prescribed, undertaken by a company in pursuance of its CSR policy, shall be transferred by the companies within a period of 30 days from the end of the financial year to a special account to be opened by the company in that behalf for that financial year in any scheduled bank to be called as unspent corporate social responsibility account. सो जैसे हमारे पास डिविडेंड नॉन पेमेंट के लिए या फिर डिविडेंड हेल्ड इन अबेयंस के लिए एक स्पेशल अकाउंट हुआ करता है, लाइक डिविडेंड पेमेंट अकाउंट या फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वैसे ही एक सीएसआर के लिए भी एक स्पेशल अकाउंट गवर्नमेंट ने ओपन करवाने के लिए बोला, जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की अनस्पेंट सीएसआर स्पेंडिंग से ही रिलेट करेगा, एंड उसका नाम है अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर एक कंपनी को फाइनेंशियल ईयर एंड होने से विद इन 30 डेज अगर कोई अमाउंट अनस्पेंट रह जाता है विद रिगार्ड टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, उसे ट्रांसफर करना है इस पर्टिकुलर अकाउंट, एंड सच अमाउंट शैल बी स्पेंट बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ इट्स obligation towards CSR policy within a period of 3 financial year from the date of such transfer, failing which the company shall transfer the same to a fund specified in schedule 7 within a period of 30 days from the date of completion of the third financial year. So देखिए यहाँ पे प्रोविजंस को फिर से कॉग्रीगेट कर दिया है। गवर्नमेंट ने कहा कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हमने उस प्रोजेक्ट को बनाया जो कि 3 साल तक चले, यानी अगर पहले साल में आपकी कुछ अनस्पेंट सीएसआर स्पेंडिंग रह जाती है तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप उस स्पेंडिंग को अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में डाल सकते हैं, और आने वाले 3 सालों तक आप उस चीज को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उस अमाउंट को यूज आप कर सकते हैं अपनी सीएसआर स्पेंडिंग दिखाने के लिए। अब मान लीजिए कि उन 3 सालों में भी आपने उस अमाउंट को जो है वो यूज अप नहीं किया, सो होगा क्या, जैसे ही वो थर्ड फाइनेंशियल ईयर जो है वो खत्म होगा तो उसके विद इन 30 डेज के अंदर आपको सबसेक्शन 5 वाला ट्रांसफर यानी स्पेसिफाइड फंड यानी पीएम केयर्स या फिर स्वच्छ भारत कोष, इन्हीं सारे फंड्स में जो शेड्यूल 7 के अंदर मेंशन्ड है उस फंड को उस अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप देखिए कितनी मेजर ये प्रोविजंस बन गई हैं कि जो भी आपका अमाउंट था जो आपने एक्सपेंड नहीं किया, जो कि आपको एक्सपेंड करना था एज पर रेगुलेशन, सो गवर्नमेंट इज मेकिंग और गवर्नमेंट इज आस्किंग यू टू डिपॉजिट दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन ऑल द फंड्स, so the government is acting as a collecting agent basically. If you are not making these expenditures, so let us come forward and we'll make that particular expenditure on your behalf. So this is what the provision is. And सब लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि क्या कंपनी अगर ये अमाउंट ट्रांसफर कर देती है इस फंड के अंदर, जो भी हमने मतलब ये बेसिकली एक पेनल क्लॉज ही है, लेकिन गवर्नमेंट वही एक्सपेंस को वसूल रही है जो कि आपने खर्च करना था और खर्च नहीं किया, तो क्या जो बेसिकली एक्ट की जो ये कंडीशन है कि सीएसआर स्पेंडिंग की, ये डिसेमिनेट हो जाती है या नहीं, यानी माना जाएगा कि नहीं कि कंपनी ने इस एक्सपेंस को खर्च कर दिया है फॉर सीएसआर? तो हाँ जी बिल्कुल, इस एक्सपेंस को माना जाएगा दैट यू हैव स्पेंट दिस पर्टिकुलर अमाउंट एज योर सीएसआर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉलोइंग और कंप्लाइंग विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन 135 स्टैंड्स सेटिस्फाइड। सो बेसिकली अगर आप ये वाला इस प्रोविजन को फॉलो करते हैं इन सब्सटेंस की 6 महीने आपने नहीं करा बट 6 महीने के बाद आप उसे ट्रांसफर कर देते हैं फाइनेंशियल ईयर, तो बेसिकली आप माने जाएंगे कि आप सीएसआर को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ये सारा कुछ वापस से ही अमेंडमेंट से ही सब कुछ नोटिफाई हुआ है। हालांकि ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में इसका पूरा एक मेंशन आया था, बट दिस प्रोविजंस हैव कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 22 ऑफ जनवरी 2021। अच्छा, अब इसमें एक पर्टिकुलर लाइन पे मैं थोड़ा सा एम्फेसिस करना चाहूंगा कि यहाँ पे लिखा था द कंपनी शैल ओपन in this behalf the company shall open an unspent corporate social responsibility account for the financial year for a financial year in any scheduled bank. So मान लीजिए द कंपनी इज इनटू मतलब उनके काफी सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मान लीजिए 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इन मोशन है फॉर सीएसआर एक्टिविटीज, एंड कंपनी ने उन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए अनस्पेंट सीएसआर एक्सपेंडिचर्स हैं। सो क्या कंपनी को हर एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए एक अलग अलग अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा? तो द आंसर इज नो। आप एक अकाउंट खुलवाइए सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि होगा अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट,
हालांकि हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको ये अकाउंट एट फ्रेश खुलवाना पड़ेगा। यानी अगर 2020-21 का अनस्पेंट सीएसआर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो आप उसका एक अकाउंट खुलवाएंगे। अगले साल का अगर होगा तो उसके लिए एक फ्रेश अकाउंट खुलेगा। सारे प्रोजेक्ट्स का एक ही अकाउंट खुलेगा, बट हर फाइनेंशियल ईयर के लिए एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग फाइन्स एंड पेनल्टीज पे। तो आप लोगों ने सबने सुना होगा दैट नाउ सीएसआर प्रोविजंस हैज बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ अ सिविल रॉन्ग। पहले इसके अंदर क्रिमिनल लायबिलिटीज लाइक इम्प्रिजनमेंट वगैरह भी आती थी, बट नाउ दिस प्रोविजंस हैव बीन रिलैक्स्ड एंड दे हैव बीन कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू अ सिविल रॉन्ग, यानी आप फाइन एंड पेनल्टीज देके छूट जाएंगे। सो गवर्नमेंट ने कहा दैट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अप विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 और 6, यानी आप अनस्पेंट अमाउंट को ट्रांसफर नहीं करते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, या फिर आप अनस्पेंट अकाउंट में अपना पैसा ट्रांसफर नहीं करते हैं विद इन द डिजायर्ड पीरियड ऑफ 30 days, so what will happen is a penalty of twice the amount required to be transferred by the company to the fund specified in schedule 7 or the unspent corporate social responsibility account as the case may be, or 1 crore whichever is less shall be levied on the company. So basically जितना अमाउंट आपने ट्रांसफर करना था उससे 2 गुना अमाउंट की पेनल्टी सरकार आपसे वसूलेगी अगर आप फेल कर गए हैं उस पैसे को ट्रांसफर करना विद इन 6 months अपने सबसेक्शन 1 के शेड्यूल 7 में, या फिर अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट के अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। सो अगर आप देखें ये बहुत ही स्पेसिफिक ये सेक्शन कह रहा है कि फाइन्स एंड पेनल्टी सिर्फ उन केसेस में लगेगी जहां पे आप ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं इन अमाउंट्स को इन पर्टिकुलर टाइमलाइंस के अंदर। ध्यान रखिए ये नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन पे नहीं है, ये नॉन कंप्लायंस विद द ट्रांसफरेंस है। अगर आप ट्रांसफर नहीं करते हैं इन अमाउंट्स को विद इन द स्पेसिफाइड टाइमलाइंस, सो बेसिकली कंपनी के ऊपर ट्वाइस की पेनल्टी लग जाएगी, या फिर 1 crore रुपीज विच एवर इज लेस। तो एक 1 crore रुपीज का जो अमाउंट है, मान लीजिए 50 लाख की सीएसआर की स्पेंडिंग है, 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी, अगर 1 करोड़ की होगी तो 2 करोड़ की, लेकिन अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ है तो 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी आप कंपनी के ऊपर लग जाएगी। और every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 1/10 of the amount required to be transferred by the company to such fund specified in schedule 7 or unspent corporate social responsibility account, or an amount of 2 lakh rupees whichever is less। So जो भी officers of the company like directors या फिर person specifically knowingly they have done this particular offense, या फिर वो सिविल रॉन्ग के अंदर एक पार्ट बने, तो उन लोगों पे ये जो लाइबिलिटी है या पेनल्टी है वो लगेगी 1/10 ऑफ द अमाउंट जो कि ट्रांसफर करना था। यानी 5 लाख ट्रांसफर करना था, बेसिकली 50 लाख ट्रांसफर करना था, तो 5 लाख की पेनल्टी उन्हें भी भरनी पड़ेगी, जो कि मैक्सिमम जाएगी 2 लाख तक, यानी 5 लाख नहीं 2 लाख हो जाएगा उसका मैक्सिमम। सो ये बेसिकली पेनल्टीज जो या फिर फाइन्स बेसिकली ने मैं नेचर दूंगा, सो दैट इज आल्सो बीन नोटिफाइड बाय एंड फ्रॉम 22 जनवरी 2021। इससे पहले ये सेक्शन कुछ 50,000 रुपीज की पेनल्टी की बात करा करता था, एंड ऑल्सो इम्प्रिजनमेंट की केसेस, इम्प्रिजनमेंट के बारे में भी बात करता था फॉर ऑफिसर्स हु आर इन डिफॉल्ट, बट नाउ दैट कंडीशंस हैव बीन विंडिकेटेड एंड व्हाट वी सी इज कि पेनल प्रोविजंस लगा दिए गए। बट अगर आप देखेंगे जैसे मैंने की बताया कि जो ये पेनल प्रोविजन है दे आर स्पेसिफिकली फॉर नॉन ट्रांसफरेंस ऑफ अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट। अब ये सारे प्रोविजंस को अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आपका जो केस है वो जनरल प्रोविजंस में चला जाएगा, जहां की स्पेसिफाइड पेनल्टीज इस पर्टिकुलर सेक्शन में डिफाइंड नहीं है, तो वो चला जाएगा 134 सबसेक्शन 8 में, जो कि या फिर जनरल पेनल्टी में चला जाएगा, दैट इज सेक्शन 450 ऑफ द एक्ट, एंड दैट वुड बिकम एप्लीकेबल। सो अगर आप ध्यान से देखें, एंड इवन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ पेनल्टी, अगर आप ये पेनल्टी नहीं भी देते तो आपके ऊपर 454(8) भी लग जाएगा। तो आप देखिए अगर आप इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते तो आप बहुत सारे सेक्शंस में बुक हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ अगर आपने ट्रांसफर नहीं करा है टाइमली तो फिर आपके ऊपर ये जो पेनल प्रोविजंस बताई ट्वाइस की अप टू 1 करोड़ या फिर 1/10 अप टू 2 लाख की, सिर्फ ये अप्लाई करेंगे। सो ये वर्ड पे एम्फेसिस थोड़ा सा देना बहुत जरूरी है कि ये बेसिकली सिर्फ ट्रांसफरेंस हम लोग डील कर रहे हैं। अब आते हैं बिल्कुल लास्ट लिमिट की तरफ, जहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा आपको कि रिलीफ क्या बेसिकली गवर्नमेंट ने जो है वो दिया है। सो गवर्नमेंट हैज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड सम प्रपोर्शन ऑफ कंपनीज जिनकी सीएसआर एक्सपेंडिचर्स जो हैं या सीएसआर कंट्रीब्यूशंस जो हैं
वो एक पर्टिकुलर लेवल या पर्टिकुलर पॉइंट तक है. So where the amount spent by a company under subsection 5 does not exceed 50 lakh rupees, the requirement under subsection 1 of constitution of a corporate social responsibility committee shall not be applicable, and the function of such committee provided in this section in such cases shall be discharged by the board of directors. So एक बहुत ही बड़ा रिलीफ जो दिया गया है आफ्टर सो मच, मतलब ये रिगरस अमेंडमेंट्स लाने के बाद, तो वो यही है कि जहां पे आपके सीएसआर एक्सपेंसेस एक कंपनी के नहीं एक्सीड होते हैं 50 लाख से, सो उन केसेस के अंदर वो सीएसआर कमेटी बनाने की एक स्पेसिफिक या रेगुलेटरी या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट या प्रेसिडेंट कंडीशन जो थी उसे कंपनी को फॉलो अब नहीं करना है. दे जस्ट हैव टू, लाइक द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल ओवरसी ऑल द ऑपरेशंस एंड स्पेसिफिकली जो सीएसआर पॉलिसी होगी दैट वुड बी ड्राफ्टेड, but all the compliances and disclosures would be looked on just by the board of directors, and there would be no need of making or incorporating a specific CSR committee for looking after these functions. So this is a very good relief, I would say. So this particular relief came by the Companies Amendment Act of 2020, that is dated 28 September 2020, and this amendment went effective again on the 22nd of January 2021. एक पर्टिकुलर क्लॉज और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि कब ये वाले जो सीएसआर के प्रोविजंस हैं ये एक कंपनी के ऊपर नॉन एप्लीकेबल हो जाते हैं. So every company which ceases to be a company covered under this particular section for 3 consecutive financial years shall not be required to constitute a CSR committee, comply with the provisions of subsection 1 to 6 of the subsection till the time it meets the requirements of section 135 once again. So basically 3 consecutive years के लिए अगर आप CSR के provisions को follow नहीं कर रही है एक particular company, या मतलब उसे जो conditions लिखी हुई हैं वो उस पर अप्लाई नहीं करती है during those particular financial years, तो ये आपके ऊपर जो CSR के provisions हैं ये अप्लाई नहीं करेंगे. Now we will be discussing the additional amendments that have been brought in by the amendment rules, the new rules what we call it. मैंने बहुत सारी amendments तो already ऊपर के discussion के अंदर incorporate या include कर दी हैं. तो कुछ conditions या amendments ऐसी थी जो कि ये नए rules लेके आए, तो उन्होंने स्पेसिफिकली उन चीजों को मेंशन किया जो कि however सेक्शन से जुड़े हुए हैं बट सेक्शन का डायरेक्टली पार्ट नहीं बनते. सो फर्स्ट वन अमंग्स देम इज नॉन परमिसिबल एक्टिविटीज अंडर सीएसआर. सो ऐसी एक्टिविटीज को डिफाइन किया गया जो कि सीएसआर, हाउएवर शेड्यूल 7 के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज ऑलरेडी डिफाइंड है जिनके अंदर आप सीएसआर स्पेंडिंग कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट को लगा कि कुछ हम लोग एक नेगेटिव लिस्ट जिसे हम कहते हैं, तो एक नेगेटिव लिस्ट भी इशू करें कि अगर आप इन एक्टिविटीज के अंदर स्पेंडिंग्स करेंगे, कंट्रीब्यूशंस देंगे, तो इसे कंपनीज एक्ट के लिए नहीं माना जाएगा दैट यू हैव मेड द फॉलोइंग सीएसआर स्पेंडिंग्स और कंट्रीब्यूशंस. सो कौन कौन सी ये एक्टिविटीज हैं? सो फर्स्ट एक्टिविटी इन परस्यूएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. सेकंड आती है कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 182 ऑफ द एक्ट. थर्ड आती है स्पॉन्सरशिप फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट्स फॉर ओन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. फिर आता है फुलफिलमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ एनफोर्स, या फिर एक्टिविटी अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, या फिर एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी डिफाइंड अंडर क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ वेजेस एक्ट. सो ये बेसिकली सारी एक्टिविटीज हैं जो कंपनी ने, जो गवर्नमेंट ने सीएसआर के एक्सपेंडिचर के परव्यू से बाहर कर दी है. इसके अंदर भी 2 एक्सेप्शन स्पेसिफिकली आए कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर एक पर्टिकुलर कंपनी जो है दैट इज इन्वॉल्व इन R&D ऑफ न्यू वैक्सीन या फिर न्यू ड्रग्स या फिर मेडिकल डिवाइसेस, तो उन केसेस में वो ये बेसिकली सीएसआर, वो R&D के खर्चे को वो सीएसआर का एक्सपेंडिचर मान सकती हैं फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग 2020-21 टिल 2022-2023, यानी 2021 से शुरू करके अगले 3 सालों तक दे कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर R&D फॉर द पर्पस ऑफ सीएसआर, फॉर क्लेमिंग द सीएसआर एक्सपेंडिचर. सो ये बेसिकली जरूरत है आज के टाइम पे ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन दैट दिस बूस्ट शुड बी गिवन. सो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इस कंडीशन को रिलैक्स रखा है कि उन कंपनीज के केसेस में जो कि स्पेसिफिकली R&D करती है मेडिकल लाइन के ऊपर, उन्हें हम लोग ये डिडक्शन या रिबेट दे देंगे. सेकेंड, जहां पे हमने बोला कि कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो कि आउटसाइड इंडिया करते हैं उस पर सीएसआर नहीं मिलता, हाउएवर ट्रेनिंग ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल इंडियन स्पोर्ट्समैन, अगर ये बाहर जाके ट्रेनिंग करते हैं एंड उसके लिए द कंपनी स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूटिंग फंड्स, तो उस केसेस में मान लिया जाएगा, बिकॉज अगेन दिस इज नेशनल डेवलपमेंट, तो मान लिया जाएगा कि आप जो सीएसआर का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं दैट इज फुल्ली परमिसिबल. इवन दो इट इज नॉट मेड इन इंडिया, इट इज इनकर्ड आउटसाइड इंडिया, इवन देन इट शैल बी कंसिडर्ड. सेकेंड जो अमेंडमेंट आती है दैट इज विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स.
अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कहीं पे भी इस पर्टिकुलर एक्ट या रूल्स के अंदर एग्जॉस्टिवली डिफाइंड नहीं है. However, the amendment defines it as an expense incurred by the company for general management and administration of its CSR functions in a company. यानी जो भी कंपनी एक्सपेंडिचर करेगी एक जनरल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टू कैरी आउट द CSR फंक्शंस, तो उसे हम मानेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का अगर आप सही मायनों में देखें तो नेचर क्या होगा, बेसिकली वो होगा एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर यूटिलिटी कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, या फिर कोई ऑफिस सप्लाईज हो सकते हैं, लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. अब इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने कहा कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के परव्यू से हटा रहे हैं, यानी ये सब खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नहीं माने जाएंगे. So with this notification, it now exclude expenses directly incurred for designing, implementation, monitoring and evaluation of a particular CSR project or program. So इसका implication क्या निकल के आता है कि अब ये सारे खर्चे जो कि इस particular type like designing, implementation, monitoring या evaluation में खर्च होते हैं, इसे सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं मानेगी. यानी अब आप इन सब खर्चों को कंसीडर कर पाएंगे एज योर नॉर्मल CSR स्पेंडिंग. So this means that these expenses can now be considered as a part of the program itself, thereby allowing a greater allocation of resources on these activities. और हम लोग जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का प्रॉब्लम क्या था, कि वाई ये इस एक्ट या अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, कि उसके ऊपर कैपिंग थी कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का कंपोनेंट है दैट कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ योर CSR कंट्रीब्यूशन इन अ फाइनेंशियल ईयर. सो इन सारे एक्टिविटीज से जुड़े हुए अगर जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के परव्यू से बाहर निकाल दिया, यानी अब आप पूरी तरीके से उन खर्चों को यूज कर पाएंगे एज योर CSR स्पेंडिंग. इंपॉर्टेंट नोट वर्दी पॉइंट क्या है कि इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है एक्सपेंसेस डायरेक्टली इंकर्ड, सो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझे तो मान लीजिए हम एक सैलरी एंड ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ CSR डिवीजन ऑफ अ कंपनी, हमने वो पे करी है और उसमें कुछ स्टेशनरी कॉस्ट भी लगी, कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी इंकर हुए. हम लोग इन सब कॉस्ट को जो भी हुए इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कह देते हैं. हाउएवर इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर मान लीजिए मैंने सैलरी दी है स्कूल टीचर्स को, ठीक है, या फिर अदर स्टाफ को, यानी वो डायरेक्टली लिंक्ड है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, तो वो सारा खर्चा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के परव्यू में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट CSR स्पेंडिंग प्रोजेक्ट की तरफ जाएगा एंड वो एज अ CSR एक्सपेंस विदाउट कैपिंग ऑफ 5% हो जाएगा अलाउ. So this is also a very major and a good change, a good amendment that the government has considered. थर्ड अमेंडमेंट की तरफ अगर चलें, जो कि एक और है, तो जरूरी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि जितनी भी इंटरमीडिएरी एजेंसीज थी या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जिन्हें कहूंगा, जो कि CSR की एक्टिविटीज को फॉर्मुलेट करती थी, बिकॉज एवरी कंपनी इज नॉट डूइंग CSR इटसेल्फ, आइदर इट इज गेटिंग इट डन थ्रू एन एक्सटर्नल एजेंसी जिसे हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कह देते हैं, या फिर वो डायरेक्टली डोनेशन दे देती हैं किसी ना किसी फंड के अंदर जो कि शेड्यूल 7 के अंदर डिफाइंड. सो ऐसी कंपनीज जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज एज एन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज एक्ट करती हैं एंड CSR एक्टिविटीज करवाती हैं, अंडरटेक करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, सो फॉर देम अ स्पेसिफिक फाइलिंग ऑफ e-form CSR 1 हैज बीन मेड इम्प्लीमेंटेड. So the new rule brought the new mandatory registration of trusts section 8 companies which shall act as an implementing agencies in order to undertake the CSR activities on behalf of the companies with the central government by way of filing e-form CSR 1 with registrar of companies. Further, the MCA has introduced the MCA e-form CSR 1 with effect from 1st of April 2021 on the MCA portal. On submission of this particular e-form, a unique CSR registration number shall be generated by the system automatically, and the said number of implementing partner is required to be disclosed in Annexure 2. So basically, अब एक CSR registration number, एक नई चीज, एक नई टर्म, एक नया e-form निकल के आया है. ये सारी उन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को लेना पड़ेगा मैंडेटरीली 1st of April 2021 के बाद. अब मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं कि एक कोई एजेंसी है जो कि ऑलरेडी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करा रही है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हैज केम अप फ्रॉम 1st of April 2021. सो मान लीजिए वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है उन्होंने मार्च तक अंडरटेक किया. सो क्या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उन्हें ये वाला जो CSR रजिस्ट्रेशन नंबर है ये लेना पड़ेगा कि नहीं? तो आंसर इज नो. FAQs के अंदर भी इसका बहुत ही अच्छा रेफरेंस दिया है गवर्नमेंट ने कि अगर कोई पिछला प्रोजेक्ट है जिसके रेफरेंस में एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी काम कर रही है,
तो उस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के जुड़े हुए कोई भी प्रोजेक्ट्स को उनके लिए रजिस्ट्रेशन CSR रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। हाउएवर 1/4/2021 के बाद जितनी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अपनी अंडरटेक करना चाहती हैं CSR एक्टिविटीज, उन्हें एक यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरीली लेना ही पड़ेगा ई फॉर्म CSR 1 फाइल करके। नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो विद दीज अमेंडमेंट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड एंड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग CSR कंट्रीब्यूशन इन बोर्ड रिपोर्ट्स हैज बीन इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। अब यहाँ पे बना दिया है CFO और पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू सर्टिफाई CSR फंड यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस एंड मैनर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। सो बेसिकली CFO या फिर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसे बना दिया है रिस्पॉन्सिबल कि वो अब सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेशन का एक न्यू फील्ड ओपन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कि उन्हें सर्टिफाई करना होगा CSR फंड को कि क्या कंपनी ने उस चीज को CSR पॉलिसी के हिसाब से यूटिलाइज किया, अगर यूटिलाइज नहीं किया तो क्या उन्होंने उस अनस्पेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया, या फिर विद इन ड्यू टाइमलाइंस उन्होंने उस फंड को उसी तरीके से इस्तेमाल किया जैसी कंपनी की CSR पॉलिसी बनी हुई थी। सो बेसिकली एक सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट एडअप कर दी गई है फॉर द प्रोफेशनल्स हेयर, ठीक है। और बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी इसका डिटेल्ड डिस्क्लोजर जाएगा अब CSR का, एंड साथ में ये वाला पॉइंट जो कि हमने अभी सर्टिफिकेशन वाला बोला है, इसका भी डिस्क्लोजर जो है या फिर वो सर्टिफाइड रिपोर्ट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वो भी बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनेगी। और इसके अलावा जो भी अभी अपने सेट ऑफ या एक्सेस एक्सपेंडिचर जो हमने कर दिया, उसकी एक डिटेल्ड शीट जो भी बनेगी कि हम इतना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, या फिर ये हमारा अगले 3 सालों में सेट ऑफ होगा, या जो भी एक कंपनी के पर्टिकुलर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, तो वो सारा डिस्क्लोजर भी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर जाएगा। तो बेसिकली अगर आप समझे तो बोर्ड रिपोर्ट के अंदर एक स्पेसिफिक सेक्शन आने वाला है जिसके अंदर स्पेसिफिकली 2 पेज या 3 पेज की एक CSR रिपोर्ट होगी। उसके अंदर सब कुछ लिखा जाएगा कि कंपनी ने कैसे इस फंड को यूटिलाइज किया, उसकी सर्टिफिकेशन करी, उसे ट्रांसफर किया, n number of reasons that are to be disclosed, and a perfect field, a good field for all the professionals out there to go into the avenue of CSR. लास्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, लास्ट अमेंडमेंट की तरफ, जो कि है इम्पैक्ट असेसमेंट। सो एक नया टर्म, एक नई चीज, एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया इन अमेंडमेंट्स ने। सो द पर्पस ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट इज टू असेस द सोशल इम्पैक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर CSR project. The intent is to encourage companies to take considered decision before deploying CSR amounts and assess their impact of their CSR spending. This is not only served as a feedback for companies to plan and allocate resources better, but also shall deepen the impact of CSR. So basically एक impact assessment का एक नया कॉलम स्टार्ट किया जिसके अंदर बोला गया कि जो भी कंपनीज वाकई में CSR के एक्सपेंडिचर करते हैं उससे वाकई सोशल इम्पैक्ट कितना पड़ता है, दिस हैज टू बी ऑल्सो असेस। एंड इसे असेस कौन करेगा, उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिपेंडेंट एजेंसीज बनेंगी जो कि इस इम्पैक्ट को असेस करेंगी। बट ये वाली पर्टिकुलर इम्पैक्ट असेसमेंट वाली चीज जो है, दैट इज नॉट मेड एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी कंपनी. It is made applicable only to the following class of companies with minimum average CSR obligation of rupees 10 crore or more in the immediately preceding 3 financial year, and companies that have CSR projects with outlay of minimum rupees 1 crore and which have been completed not less than 1 year before undertaking impact assessment. तो 2 कंडीशंस लगा दी हैं जो कि इस इम्पैक्ट असेसमेंट को ले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल बड़े एंटरप्राइजेस की तरफ। तो अगर एक एंटरप्राइज ये दोनों कंडीशंस को मीट आउट करता है तभी उसके ऊपर इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स अप्लाई होंगे, यानी उसे एक लेनी पड़ेगी इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट फ्रॉम अ इंडिपेंडेंट एजेंसी। अब ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कौन होगी, कैसे ऑपरेट करेगी, इसके लिए जो भी डिटेल रूल्स होंगे वो विद टाइम डेफिनेटली द गवर्नमेंट वुड नोटिफाई। और एक छोटा सा रूल है कि जो भी कॉस्ट ऑफ ये इम्पैक्ट असेसमेंट होगी, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ही करवा रही है तो इसे भी CSR स्पेंड ही मानना पड़ेगा। बट इसके लिए एक रूल आया कि ये वाला जो कॉस्ट है दैट विल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द मैंडेटेड CSR और ₹50 लाख विच एवर इज लेस। तो एक अपर बैंड लिमिट दे दिया 50 लाख रुपए की, या फिर बोल दिया है कि 5% जो भी खर्चा हम लोग करेंगे अपने CSR फंड का, तो उससे ज्यादा आप इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर खर्चा आपको CSR स्पेंडिंग नहीं माना जाएगा। सो ये एक 5% की कैपिंग है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के ऊपर से 5% की कैपिंग थी, तो ये 5% की सेपरेट कैपिंग्स अब आ जाती है। अब जो ये CSR प्रोविजंस है ये भी 22 जनवरी 2021 से ही इफेक्ट में आया है। और अब इम्पैक्ट असेसमेंट आगे के फाइनेंशियल ईयर्स पे, लाइक इट इज अ प्रोस्पेक्टिव प्रोविजंस ऑब्वियसली, सो इट विल फ्लो टू द कमिंग फाइनेंशियल ईयर्स लाइक 2020 2021 से ही आगे जाके शुरू होगा।
However, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एक कंपनी चाहे अपने प्रीवियस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के लिए भी इम्पैक्ट असेसमेंट कराना, बिकॉज दिस एड्स टू द रेपुटेशन ऑफ द एंटरप्राइज ओनली, सो वो करवा सकता है, सो दैट वुड बी अ गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस। सो इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट भी बोर्ड के सामने प्रेजेंट करनी पड़ेगी, एंड दैट विल आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट, उसके भी डिस्क्लोजर्स वैसे ही वैसे जाएंगे। तो इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ तो ये सारे प्रोविजंस जो भी नोटिफाई करे गए हैं, सो दीज हैव been very much structured and detailed changes, मतलब एक तरह से the entire framework of CSR policies have been defined, and बहुत ही डिटेल में even how would the CSR contribution go, उसको कंप्लायंस को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे मेरे हिसाब से पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स लिए। सेकेंडली प्रोफेशनल्स का भी एक रोल, क्योंकि सर्टिफिकेशन डाल दिया गया है तो उससे प्रोफेशनल्स का भी एक रोल ज्यादा बढ़ जाता है, एंड ऑल्सो दीज प्रोविजंस हैव बीन मेड स्ट्रिंजेंट, तो प्रोफेशनल और ज्यादा अच्छे तरीके से इन सारे प्रोविजंस को इंश्योर कराएगा, एंड कंपनी शुड ऑल्सो पे इक्वलेंट हीट टू द सेम। लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं अपना, अपने पास 10 मिनट्स का टाइम है, मैं आपके 5 मिनट्स और लूंगा। हम लोग असेस करेंगे, ये बहुत सीएस का क्वेश्चन आता है, ये बहुत सीएस का भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सपेंस है, बेसिकली एक्सपेंस वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, तो उसका टैक्स इंप्लीकेशन क्या है, कि क्या हम उसे एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं, क्या हम उस पर एटीजी क्लेम कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा द अमाउंट स्पेंड बाय द कंपनी टुवर्ड्स सीएसआर कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर. This has been specifically specified by the explanation to section 37(1) of the Income Tax Act, which was inserted through the Finance Act 2014, provides that any expenditure incurred by an assessee on the activities relating to CSR referred to in section 135 of the Act shall not be deemed to be an expenditure incurred by the assessee for the purpose of business or profession. तो यानी अगर आप इन पर्टिकुलर चीजों के लिए सेक्शन 135 के सीएसआर एक्सपेंडिचर के लिए कोई भी खर्चा करेंगे तो उसे बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, यानी उस खर्चे के ऊपर आपको टैक्स रिबेट या टैक्स डिडक्शन उस पर्टिकुलर खर्चे की नहीं मिल पाएगी। हाउएवर लिटिगेशन का पॉइंट ये रहा है कि मान लीजिए बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, या पीएम केयर्स फंड है, या क्लीन गंगा फंड है, या फिर स्वच्छ भारत कोष है, तो इनके अंदर हम डोनेशंस देते हैं, तो यूजुअली ये एटीजी के अंदर जो है वो टैक्स डिडक्टेबल होती है। सो क्या अगर ये कंपनी इस पर्टिकुलर अमाउंट को उन सारे पर्टिकुलर फंड्स के अंदर देती है, तो क्या एटीजी की डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी? सो दिस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अंडर वेरी मच लिटिगेशन। इसके ऊपर बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स और बहुत सारे कोर्ट्स के डिसीजन आए हैं, बट इन इफेक्ट ज्यादातर कोर्ट्स ने कंसिडर करा है कि इफ अ कंपनी इज पर्टिकुलरली कंट्रीब्यूटिंग फंड्स टू दीज पर्टिकुलर द स्पेसिफाइड फंड्स फॉर द एटीजी, तो उन पर्टिकुलर फंड्स के अंदर जो कंपनी है वो एटीजी का बेनिफिट क्लेम कर सकती है। एटीजी के अंदर स्पेसिफिकली दो फंड्स की एक्सेप्शन लिखी हुई है, कि स्वच्छ भारत कोष और क्लीन गंगा फंड। अगर आप इनके अंदर डोनेशन देते हैं या अपना जो अपना स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड सीएसआर करते हैं, तो आपको एटीजी की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये एटीजी के अंदर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। सो अगर ये एटीजी के अंदर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, तो इसका इफेक्ट क्या निकल के आता है कि बाकी सारे फंड्स के अंदर अगर आप सीएसआर क्लेम करने के लिए भी पैसा डालते हैं, सो यू कैन वेरी वेल क्लेम द डिडक्शन। इवन बैंगलोर टैक्स ट्राइब्यूनल ने और बहुत सारे स्टेट्स के डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने भी ये डिसीजन दिया है कि दिस पर्टिकुलर जो अमाउंट है जो कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके अंदर, उसका आप डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। किस बेसिस पे गवर्नमेंट डिनाई कर रही थी कि बेसिकली जो एटीजी का प्रीमाइस है दैट इज डोनेशन प्रोमाइस। तो हम किसी लीगल बाउंडेशन की वजह से या लीगल स्टैट्यूटरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से सीएसआर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं सेक्शन 135, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम इस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, ये बेसिकली टैक्स ऑफिसर्स का कहना था, गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा। सो टैक्स ऑफिसर्स कहते थे दैट दिस इज कमिंग नॉट बिकॉज ऑफ योर डोनेशन फीड, बट इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ अ लीगल लाइक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको करना ही है, तो यू हैव डाइवर्टेड इट हियर जस्ट टू क्लेम द टैक्स डिडक्शन। हाउएवर गवर्नमेंट ने इस चीज को और ज्यादा प्रोफाउंडली समझा एंड बोला कि इफ द सेक्शन इज स्पेसिफिकली अलाउइंग, वो आपसे नहीं पूछ रहा कि इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ रिसीट्स डोनेशन ही होने चाहिए, ऐसा कहीं भी सेक्शन ने एटीजी में नहीं लिखा है। तो अगर ये अलग भी है, इसका नेचर जो है दैट इज डिफरेंट देन बीइंग डोनेशंस, इवन देन इन दोस केसेस द डिडक्शन कैन नॉट बी डिनाइड। सेकेंडली, जब स्पेसिफिकली दो फंड्स बना दिए गए हैं जिसके अंदर अगर आप सेक्शन 135 की डिडक्शन सीएसआर स्पेंडिंग करेंगे तो उसका डिडक्शन आपको एटीजी में नहीं मिलेगा, ऐसा लिख दिया गया है, तो हाउ कैन अदर फंड्स बी डिनाइड द डिडक्शन अंडर सेक्शन एटीजी फॉर दिस पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशंस? तो दिस हैज बीन मेड लाइक वेरी क्लियर बाय वेरियस ऑफ द कोर्ट्स
कि भाई इस केस के अंदर तो डेफिनेटली जो CSR का बेनिफिट है वो मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो डिनाई नहीं कर पाए। तो जो इस सारे नटशेल में प्रोविजंस हमने पढ़े, द प्रोविजन ऑफ द न्यू रूल्स, टू मी दे अपीयर टू बी मोर डिटेल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, जैसा कि मैंने कहा, दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद न्यू रिक्वायरमेंट्स like detailed reporting of CSR contribution in the board report, impact assessment of CSR contribution, and covered the contribution toward vaccine and R&D, focusing on the health issues faced by the Indian citizens during the COVID-19. Though the new CSR provision are very streamlined, comprehensive, and have addressed many unsolved issues, but there are certain provisions that are still vague and need some clarity. यानी अब इसके अंदर भी देखिए, अब जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज है उसके अंदर उसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। हालांकि FAQs की वजह से, जो कि अभी 25 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने निकाले, उससे 95% जितनी भी क्वेरीज, इवन आई हैड फ्यू क्वेरीज, वो भी रिजॉल्व हो गई हैं। सो आई वुड suggest that you all of you refer to that particular FAQ section. Even in the link of our this particular webinar, I'll ask the moderator to put the specific link for the accessing those FAQs. 90% जो भी आप लोगों के questions होंगे वो वहां से solve out हो जाए। Now we are moved to the end of the session. So if there are any queries, I am there. I am sure मैंने डिटेल में like each and every part या each and every aspect in rules का already इस हमारे webinar में cover किया है. If there are still any queries or like if there is anything that I can ask or I can answer for, so definitely आप मुझे बताइए. I am there to help you out. Thank you, Ujjwal, for an incredible session. There are some questions I'll read. There's one question actually. Yeah. So Chirag is asking, like his question is out of scope of latest CSR amendments. He's asking if somebody creating awareness and education in the interest of general public in the field of their rights and duties and government policies through social media page/account, are they eligible for CSR claim benefit? See, now talking about that, whether this particular activity that you are talking about is within the scope of CSR activities is not. So I'll just ask you to just consider Schedule 7 and the exclusion part that I have told, like the 5 points that I have suggested, कि अगर आप उन 5 पॉइंट्स में कवर नहीं होते हैं, जो कि इसकी CSR प्रोविजंस की नेगेटिव लिस्ट बेसिकली फॉर्म आउट होती है, then all those activities that you are performing and that are enlisted or stated in Schedule 7 of the Companies Act, so that would get very well covered. एंड जो भी आप मेरे को इसका अभी तक जो आपने बोला फॉर द अवेयरनेस एजुकेशन, तो जो भी इसका एक प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव लग रहा है, दैट इज पब्लिक गुड एंड नॉट अ स्पेसिफिक सेक्शन गुड. सो दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी वुड डेफिनेटली बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज CSR एक्सपेंडिचर एज पर मी. हाउएवर डिटेल्स एंड फैक्ट्स में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको Schedule 7 को रेफर करना पड़ेगा. अगर सब कुछ ओके है, अगर आप देखिए उसका जो इनहेरेंट नेचर है दैट इज पब्लिक गुड, तो फिर डेफिनेटली जो भी आप एक्टिविटी कवर करना चाहते हैं वो आपके CSR स्पेंडिंग्स में इंक्लूड हो जाएगी एंड उसके एक्टिविटी के अगेंस्ट आप CSR एक्सपेंसेस क्लेम कर पाएंगे. Okay, thank you, Ujjwal, for that. Gaurav Bhushan has raised his hand. Gaurav, if you have any question, you can put it in the chat box. I guess there aren't any much questions, just a few questions were there. Everybody must be busy listening to the amendments that I was there was just one question. So okay. Yes, so I think we can conclude the session, I guess. Okay, so at the end, as we all say, that thank you so much for joining us for this particular session. It was a enlight again. CA Club India has been my second home, I should say, because every week I am coming up to CA Club India and taking webinars with them. Even yesterday we had a Twitter space session and that was also incredible. So thank you so much everyone for joining us for this particular session. Thank you Muskan for the moderating the session so well and for the introduction that you gave. Thank you so much for inviting me for this particular section, and if you have any queries you can drop them in the drop box below, and also you can email me to uj@ujanco.com. I'll ask the moderator to put that particular email ID in the description of the video over YouTube. Thank you so much. Swasth rahe, mast rahe. Jai. Thank you so much, Ujjwal. CA Club India is always glad to have you.